Hello everyone, good morning. I welcome each and everyone here. Welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav. कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. So before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible? Okay. So dear friend, as you know that newspaper analysis is very important. एंड ये इसमें हम मेजरली क्या डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस अबाउट द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. सो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं दैट वी डिस्कस इन न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन, right? And apart from that we also discuss from the all aspect of the newspaper, like the news based on economy, news based on sports, news based on science and tech, person and news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that we also discuss Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis session. Stay tuned. आज के न्यूज़ में देखते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑफ द डे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन ऑफ द डे मीन्स दैट विल आस्क यू द 5 क्वेश्चंस. वो सारे आपके आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस वहीं से होते हैं. सो स्टे ट्यून and you can make a short notes on that so that you can revise it at the time of your exam. It would be very beneficial for you. And quick tips, ये तो आप बिल्कुल ना देखना ना भूलें, because quick tips is for, like we discuss about the short and mnemonics. With the help of this it will be very easy for you to revise the content. Very first article of the day is today is Burkina Faso, Mali and Niger officially leave West Africa bloc. So in that context we should understand that the very first thing, that what exactly is West Africa bloc. As I told you in each and every newspaper analysis session is that, like, why the content is mentioned in the main headline, उसके background को समझना is very important, right? So यहाँ पे junta led countries जिसमें माली, निगर and बुर्किना फासो that officially left West Africa main political and trade group ECOWAS, right? And उसके बाद इसके रप्चर्स दैट वाज स्पार्क बाय जुलाई 2023, जहाँ पे मिलिट्री को लगी थी निगर में. तो यहाँ पे जो मिलिट्री लीडर्स थे इन बुर्किना एंड माली दैट हैज सीज्ड पावर सिंस 2020. तो पहले अभी समझते हैं कि ये इकोवास है क्या, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट. तो इसको हम CEDEO इन फ्रेंच इसमें यूज करते हैं और ये स्टैब्लिश हुई थी 1975 में, और आफ्टर विच ट्रीटी इट वाज साइन, दैट वाज लागोस ट्रीटी. What exactly was a mandate? Mandate was promoting economic integration among its member, and the vision of ECOWAS is creation of borderless region. ये इसका exact meaning है. जो borderless region जो है that is ये इसका main purpose है for the ECOWAS. Members इसमें कौन कौन से हैं? Benin, Cape Verde, like Gambia. ECOWAS larger aim are to have a single common currency. जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है जिनकी भी सिंगल करेंसी है, बट नॉट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्टिंग यूरो एज अ मेन करेंसी, एंड क्रिएट अ सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज एंड सोशल एंड कल्चरल मैटर्स, राइट. सो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वह अबूजा, नाइजीरिया, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं. सो बेसिकली बुर्किना फासो अगर बात करें माय फ्रेंड, ये एक बेसिकली ट्राइबल कंट्री है, राइट. सो अफ्रीकन कंट्री है, उसके इसमें रीजन है. तो जनरली फॉर द इंपॉर्टेंट टेकअवेज फॉर योर एग्जाम इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हेडक्वार्टर्स, द पर्पस ऑफ ECOWAS, एंड आफ्टर विच ट्रीटी इट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट वाज द आंसर इज 1975. आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. एवरी डे न्यूज़पेपर आर्टिकल एटलीस्ट 3 डेज से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, right, about ISRO celebrates 100th launch its journey, so far some upcoming ventures. अब यहाँ पे आप एक चीज समझें कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. With its first launch in 2025, Indian Space Research Organization, the very first thing that you should understand about ISRO, in which year ISRO was established, that was in 1969 में established हुआ था. So starting from a humble origin, ISRO has developed several rockets. It has also carried out numerous scientific missions which provide useful data that to research around the world. अब 6th generation of rocket जो है, Satellite Launch Vehicle SLV, इसके मिशन थे 4.
So ISRO has far developed at least 6 generations of launch vehicle, of which 4 remain operational. The first 2 generations of launchers which are no longer in service, that saw limited use, and SLV3 that could carry a 3 development and 1 operational flight, that is successor ASLV. ये सारी चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कल के न्यूज़ पेपर एनालिसिस सेशन में। आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे डियर फ्रेंड? सबसे पहले आप यहाँ पे टैप करेंगे प्रथम टेस्ट प्रेप ऑन यूट्यूब चैनल, वेयर यू कैन सर्च 29th January 2025 daily newspaper analysis session, where you can watch the entire things about the ISRO or everything we discussed in very detailed manner, right? So ये जो है थर्ड जनरेशनल PSLV है, right, with continues to ISRO work house launch today, जो launch today मतलब कल की आर्टिकल्स थी जिसमें मेंशन की हुई थी। So till date PSLV has gone to space 62 times, including 3 development flights. Only 2 PSLV launch have been unsuccessful. The PSLV was followed by the GSLV, whose initial flights used cryogenic engines supplied by Russia. So India ने बाद में डेवलप किए अपना क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें GSLV 5F15 है, GSLV F15 दैट फॉर 100th लॉन्च में इसको यूज किया गया, राइट? So GSLV now called LVM3, that is capable for carrying 8,500 kg for LEO. So ISRO ने डेवलप किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV दैट टू ट्रांसफर प्राइवेट इंडस्ट्री फॉर कमर्शियल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट। और आपके लिए हमने डिस्कस किया था नाविक के बारे में। सो न्यू जनरेशन ऑफ नाविक सैटेलाइट दैट आर हैवियर, हैव अ लॉन्गर मिशन लाइफ, कैरी एन इंडिजिनसली डेवलप्ड atomic clock on board and enable to send signals in the L1 frequency band. नाविक जो है अपने इंडिया का अपना है, राइट? सो नाविक इज सीन सैटेलाइट रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड लोकेशन डेटा ऑन द इंडियन मेनलैंड एंड अप टू 1500 किलोमीटर्स जो है इसका रेंज है। सो विद इसरो टारगेटिंग बिग टिकट्स मिशन सच एज सैंपल रिटर्न, राइट, and mission from the moon and mission to Venus, setting of an Indian space station. Now हम बात करते हैं the next article. This one is price of success. So generally my friend, इसमें जनरली बात की गई जो केरला है इंडिया का स्टेट, जहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, तो ये जो आप डेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, द डेफिनेशन यू शुड अंडरस्टैंड बिकॉज दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम WHO वेबसाइट। एक और चीज़ डियर फ्रेंड, जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इनकलकेट करते हैं, समझते हैं उसे, माय रिक्वेस्ट इज आप जो एक ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, लाइक आपके NCERT की बुक होगी, लाइक आपकी यहाँ पे WHO की वेबसाइट होगी, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट होगी, दैट इज अ रिलायबल सोर्सेज जहाँ से आपको देखनी चाहिए, राइट? सो जो MMR है यहाँ पे वो केरला का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो है चेंज हो रहा है। तो MMR एग्जैक्टली पहले होता क्या है आप देखो, मेन हेडलाइन में जो एडिटोरियल में मेंशन की गई है, केरला राइजिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज नॉट येट अ कॉज फॉर कंसर्न। तो MMR की अगर बात करें, कैलकुलेट की जाती है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से। सो MMR का मतलब ये है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, and it is a measure of risk of death during pregnancy or childbirth. और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम में। सो देयर कैन बी टू मच ऑफ गुड थिंग आफ्टर ऑल। सो द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट केरला हैज heralded in the country has now delivered a sucker punch to the state with the maternal mortality ratio climbing. So यहाँ पे केरला led the shift of phase of low fertility and low mortality in India and got further first as the fertility level dropped. Number of birth came down, और इसमें ऑलरेडी इसमें आर्टिकल में मेंशन की गई लाइव बर्थ्स के बारे में, एंड टोटल फर्टिलिटी रेशियो जो है वो भी इसमें एग्जैक्टली कम हुई है। सो यहाँ पे इन थ्योरी अगर बात करें, एक टर्म यूज करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी ट्रांजिशन। So demography transition occurs जब भी historical shift happens from high birth rates to high death rates to lower birth rate and death rates.
सो यहाँ पे इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो इकोनॉमिकली शिफ्टिंग जब होती है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकली, जैसे यहाँ पे एक वर्ड होती है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब ये होता है दैट हैव मतलब शिफ्टिंग ऑफ समथिंग. तो ट्रांजिशन का यहाँ पे मतलब है कि दैट इज सेड टू हैव अकर्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो थ्योरी है ये बताती है 4 स्टेज. पहला जैसे मूविंग फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन टू अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकेंड वन होता है जैसे आपका लेवलिंग आउट एंड फाइनली डिक्लाइन ऑफ TFR, टोटल फर्टिलिटी रेशियो. सो जो भी नेशंस दैट हैव रीच्ड देयर, लाइक साउथ कोरिया हो गया, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, हो रही हैं. ठीक है, तो इस आर्टिकल में बाकी कंट्री की भी कंपेयर किया गया है. राइट. So there will be a far-reaching economic and societal consensus as the proportion of the working age population comes down and aged population increased. Working age होती है 15 to 59 के एज के लिए बात हो रही है इसमें. राइट. सो यहाँ पे जो बात हो रही है burden of resources of nation. So it is important to strengthen public finances and social support system in preparation of just a second, growing elderly populations, healthcare financing that will have to be improved, and policy that support equal participation in household chores must be prioritized. तो ये जो आर्टिकल थी बेसिकली इसमें जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, इसके डेफिनेशंस को आपको अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज दे विल आस्क यू, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें it can be asked like maternal mortality ratio can be defined as. तो ये डेफिनेशन आप प्लीज लर्न कर लेना. और केरला में इसको फिर बाकी कंट्री से इसमें कंपेयर की गई है. राइट. चलो, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, हियर इट इज, सॉरी. कैबिनेट अप्रूव्स क्रिटिकल मिनरल्स मिशन विद 16,300 crores outlay. अब यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेटिंग अप द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. इस मिशन का नाम क्या है, NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन. और बजट दिया उसका 16,300 करोड़ विद एन एडिशनल 18,000 करोड़ जो है एक्सपेक्टेड इन अ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज PSU. सो NCMM का जो टारगेट्स है 1200 डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट टिल 2030-31. और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है दैट आल्सो एम्स टू ऑक्शन ओवर 100 critical minerals block by then. So a boost in exploration of critical minerals that will provide potential investors with key data on reserve, within which in turn that will increase interest and participation in auction. So यहाँ पे बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इनका क्या रोल है. GSI ने हैज अंडरटेकन 368 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट ओवर द पास्ट 3 years में, जिसमें कि 195 जो प्रोजेक्ट हैं आपके दैट करेंटली अंडर वे, एंड द माइंस मिनिस्ट्री हैज ऑक्शन ऑफ 24 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक. While we talk about NCMM के बारे में, एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स. So the mission aims to strengthen India critical minerals value chain by building a technological, regulatory and financial ecosystem that to ensure mineral availability from both domestic and foreign sources. बात करें हम अगर NCMM की, NCMM that will receive 1,000 crores from the Anusudhan National Research Foundation, ANRF, INSEE, and R&D schemes that is 2,600 crores in budgetary support. सो यहाँ पे इस मिशन का जो मेन एम है दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन बाय बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम दैट टू इंश्योर mineral availability from both domestic and foreign sources. It is set to boost access to raw materials used in strategic sectors from clean energy and electronic that to defense and agriculture. So यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं that is Kabil under the mines ministry that has acquired over 15,000 hectares in Argentina Catamarca province for the exploration of lithium. तो यहाँ पे लिथियम रिजर्व भी मिली है जिसके बारे में आपको अर्जेंटीना में है. यहाँ पे अर्जेंटीना सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है
right? So the government of India that will motivate central PSU and encourage private sector of companies that to allocate funds for acquiring critical minerals assets overseas, empowering central PSU and their joint venture and subsidiaries that invest abroad by issuing necessary guidelines according to note in the mission. Now we move to the next one. देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है. स्पेस टेलीस्कोप की बात हो रही है. सो दैट स्टबल ऑन रूल ब्रेकिंग ब्लैक होल. और ये आर्टिकल्स में अभी वो हम कल सिमिलर आर्टिकल दैट वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, प्लीज आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन एशिया सेलिब्रेट ईयर ऑफ द स्नेक. 100 of millions of people across Asia that celebrate the Lunar New Year with their families on Wednesday. So a bit farewell to the year of the dragon and usher in year of snake. और ये जो फेस्टिवल है that is celebrated in countries जैसे जहाँ पे जो है चाइना, साउथ कोरिया and autonomous region of Taiwan. So this thing is very important to understand. यहाँ पे आपको जनरली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो फेस्टिवल है यहाँ पे ड्रैगन फेस्टिवल, स्नेक फेस्टिवल is celebrated which part of the world, that you should know China, South Korea and autonomous region of Taiwan. Now we move to the next article. ये एक editorial page है. अब यहाँ पे बात हुई promise of nuclear fusion की. Although fusion technology has been in developed for decades and progress has been slow, but recent breakthroughs have raised hope for its realization. Fusion can in theory solve the energy and climate crisis. तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे इस पे ऊपर जो टेक्निकल वर्क है इसमें, और ये चाइना में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, राइट. सो an experimental nuclear fusion reactor in China last week triggered a lot of excitement by keeping it operational state maintained by more than 1000 seconds in over 70 minutes. तो जो चाइनीज रिएक्टर है that did not produce electricity, it did not even carry out a fusion reaction. So इसका फिर काम क्या है? देखो, फ्यूजन रिएक्शन की जरूरत कहाँ पे? फ्यूजन रिएक्शन रिक्वायर्स होती है वेरी हाई टेम्परेचर एंड जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर यूज़ करते हैं. 100 of millions of degree Celsius हायर देन द टेम्परेचर इन द सन्स कोर. जो सन्स के कोर का टेम्परेचर होता है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें यूज़ करते हैं. एज सच यहाँ पे हाई टेम्परेचर्स मैटर एग्जिस्ट ओनली इन द प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे एटम्स गेट स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बट सच hot plasma cannot be handled by a content in any material. So within the reactor the plasma needs to be kept suspended in a confined space surrounded by very strong magnetic fields acting as walls, and जो charge particle होते हैं that respond to magnetic field as a property is used to guide the flow of plasma within the enclosed space के अंदर. So that is why achievement of the experimental advancement superconducting tokamak EAST जो है is reactor located at Institute of Plasma Physics and Provinces जो कि ईस्टर्न चाइना में है. तो यहाँ पे जनरली जो आर्टिकल है बेसिकली टॉक कर रहा है कि जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो चाइना उस पर काम कर रहा है, उसके बाद लार्जर फ्यूजन रिएक्टर है उस पर हमें अपने कंट्री में भी काम करना चाहिए. सो IITER जिसकी बात करें तो दैट वुड बी कन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बट इट्स सक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू pave the way for other machines that to start using fusion energy as a regular source of electricity generation. Now we move to the next one. Rooftop solar installation scheme reached 8.5%. अब पता है कि हमारी डिमांडिंग, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है. गवर्नमेंट इसको हमेशा कम करना चाहती है. So nearly a year after the center launched the 75,000 crore PM सूर्य घर स्कीम, का नाम क्या है? PM सूर्य घर स्कीम, जहां पे 8.5 lakhs household have installed rooftop solar connections, right?
अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी जी, जो कौन है अभी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो यहां पे द स्कीम इज ऑन होल टारगेट्स 1 करोड़ हाउस होल्ड इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। जोशी साहब जी ने ये कहा कि दिस टारगेट इज लाइकली टू बी मेट विद इन द नेक्स्ट 2 or 3 years। सब्सिडीज क्या मिलेंगी? द स्कीम सब्सिडीज 60% ऑफ सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर 2 किलोवाट कैपेसिटी की एंड 40% ऑफ एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर सिस्टम्स बिटवीन 2 kilowatt and 3 kilowatt capacity. At current benchmark prices, this means a 30,000 subsidy for 1 kilowatt system or 60,000 for 2 kilowatt system and 78,000 for 3 kilowatt system for higher. Past the 10 years में India installed renewable capacity that has risen for 200% from 75.52 gigawatt 2014 में थी, जिससे कि 220 gigawatt होगी। ये जो तारीफ है that for ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर, उस जो कि डिक्रीज हुई 80% 2011 और 2012 के डेटा के हिसाब से देखो तो बेसिकली जो हमारी डिपेंडेंसी है कोल सेक्टर पे फॉर डिस्कॉम कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है हमारे घरों में, जो कोल सेक्टर पे डिपेंडेंसी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पे डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को गवर्नमेंट कम करना चाहती है। सो इट्स इंडीड अ ग्रेट इनिशिएटिव नाउ। और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर स्कीम। नाउ बात करते हैं क्विक टिप्स की। क्विक टिप्स का मतलब विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स, मतलब जीए में बहुत सारे कंटेंट होते हैं माय फ्रेंड, जहां पे आपको नेमोनिक्स के हेल्प से आपको याद होनी चाहिए। जैसे अभी सेशन होगा 1 तारीख को, यानी कल बजट अनाउंस होगी और आज हमारे कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे अनाउंस होगी, राइट। सो यहाँ पे जो लोकसभा की जो सेशन है, ठीक है, उसको आप लर्न कर सकते हैं। BMW, B स्टैंड फॉर बजट, M स्टैंड फॉर मॉनसून और W स्टैंड फॉर विंटर। सो Feb to May जो होता है ये हमारा बजट सेशन होता है, और क्योंकि 1 Feb को बजट अनाउंस होती है, जस्ट बिफोर 1 day हमारे कंट्री में अनाउंस क्या होती है? इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे कौन अनाउंस करते हैं? अपने इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है? V अनंता नागेश्वरम जी, ये हमारे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। सो बजट सेशन, मॉनसून एंड विंटर, नवंबर टू दिसंबर। रिट्स को कैसे लर्न कर? रिट्स होता है क्या? इन योर वायलेशन ऑफ समबडीज फंडामेंटल राइट्स, कोई भी इंसान सुप्रीम रीच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 26 और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। सो सीपीएम के हेडक्वार्टर से आप लर्न कर सकते हो सारी रिट्स। C for certiorari, P for prohibition, mandamus, habeas corpus and Q1 and 2। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, ये अभी आपने आर्टिकल देखी, इसरो लॉन्च इज 100th मिशन यूजिंग विच रॉकेट? PSLV C55, GSLV F15, GSLV MK3 एंड SSLV D2। अभी आपने इस आर्टिकल में देखा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल आपने कहाँ डिस्कस की। लेट मी शो यू द आर्टिकल। ये रहा आपका आर्टिकल। इसमें पर्टिकुलरली मेंशन करा था हमने कि इसरो ने सेलिब्रेट किया 100th लॉन्च को कहां से। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, सेकेंड वन इज राइट आंसर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट marked a significant milestone by launching 100th mission using the geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F15. This mission showcased India advancement in satellite launch capabilities. Let's move to the next one. Which one of the following countries is not a member of G7 group? G7 का कौन सा ऐसे मेंबर नहीं है? तो इटली ने लास्ट ईयर होस्ट किया था G7, ऑब्वियसली मेंबर है। रशिया यस 2014 तक ये मेंबर था G7 का। नाउ इट Russia is not a member of G7. So if you look it very carefully, because Russia, Italy, Germany, Canada, so which one is the right answer? So obvious that A is the right answer. Yes. So G7 stand for Group of 7 that founded in 1975. It is known to be a library group और इसमें इतने सारे कंट्रीज हैं। इसको आप लर्न कैसे करें? दैट आई टोल्ड यू दैट जूस से आप लर्न कर सकते हैं। जी स्टैंड फॉर हियर जापान, USA, I stand for here Italy, C for यहाँ पे Canada and E for England, which means United Kingdom। बाकी जो 2 कंट्री हैं जर्मनी और फ्रांस,
उसको भी लर्न करें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन दैट यू कैन लर्न कि यहाँ पे जो है रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। Recently, who became the first Australian to score a double century in Sri Lanka? David Warner, Steve Smith, Usman Khawaja, and Ricky Ponting. Here's the four options in there. First Australian to score a double century in Sri Lanka. So the right answer is C1 is the right answer. Usman Khawaja made history by becoming the first Australian cricketer that to score a double century in Sri Lanka, showcasing his battling prowess in challenging subcontinental conditions. Here the next one. Who has named as the ICC Women's Cricketer of the Year 2024? Smriti Mandhana, Alice Perry, Amelia Kerr, Eliza Healy. ये चार ऑप्शंस हैं ICC Women's Cricketer of the Year. ICC stands for International Cricket Council, and the headquarters that was in Dubai, UAE. उसके headquarters दुबई में है. So here is the four option: Smriti Mandhana, Alice Perry, Amelia Kerr, and Eliza Healy. So the right answer ये न्यूजीलैंड के हैं, तो इसका आंसर है C option, Amelia Kerr. The talented all-rounder from New Zealand was honored as the ICC Women's Cricketer of the Year 2024 for her exceptional performance in the international cricket across formats. Next one, here is the last question. Where is the headquarters of Indian Ocean Rim Association? IORA. South Korea, South Africa, Mauritius, and Indonesia. So here the four options is given. Now the right answer is here C option. IORA जो एक इमेंस सिटी है मॉरिशस में, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये फॉर्म्ड हुई थी 1997 में, और इसके सेक्रेटेरिएट भी हैं मॉरिशस में ही है, और इमेंस सिटी मॉरिशस. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन डियर फ्रेंड. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Or please share this video to your friends and family. और न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशंस तो मंडे टू फ्राइडे होती है 11:30 लाइव, जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. और माय फ्रेंड, टुमारो एट 5:30 विल डिस्कस इन वेरी डिटेल मैनर द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. For each and everything in a very detailed manner we will discuss. Stay tuned at 5:30, right? And if you have any questions, let me know in the comment section. Thank you so much for joining with us. Have a good day and अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Bye bye and take care once again.